السلام علیکم اردو نیٹ ورک چینل پہ خوش آمدید پیش خدمت ہے خوفناک اردو ناول عملیات کی دنیا قسط نمبر 3 جنگل جنات اور باوجی سر جھکائے پیدل ہی ہوشیار پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ بلادات کی بستی سے نمولیا کا فاصلہ خاصا تھا۔ ایک رات اور دن کی مسافت کے بعد ہی پیدل چلنے والا اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا تھا۔ اس سے پہلے جب وہ ادھر آتے تھے تو گھوڑے پر سوار ہو کر آتے۔ اس دور میں گھوڑے کے سوا دوسری کوئی سواری ملنا انتہائی دشوار تھا۔ ویسے بھی راستہ پر صعوبت اور خطرناک تھا۔ کوئی اکیلا شخص اس قدر طویل سفر کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں سفر کرنے والے قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں اور جنگلی جانوروں کا خدشہ رہتا تھا۔ اس بار باوجی نے جب بلادات سے نمولیا کے لیے پیدل سفر کا ارادہ کیا تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پیدل سفر کرنے سے صعوبتوں کو برداشت کرنے اور تزکیہ نفس کا موقع ملے گا۔ باوجی جب بلادات سے چلے تو سورج ان کے سر پر تھا، مگر اب مغرب کی گود میں سر چھپانے کے لیے اپنی روشنیوں کو تاریکیوں کے حوالے کر رہا تھا۔ 3-4 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ گھنے جنگل کے نزدیک پہنچ گئے جو خوفناک جانوروں کا مسکن تھا۔ جنگل سے آگے چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں اور اس کے بعد ہوشیار پور کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ باوجی غیر معمولی قوتوں کے مالک انسان تھے اور پراسرار قوتیں ان کی مطیع تھیں، اس لیے جنگلی جانوروں سے خوف کھانا ان کی شان کے خلاف تھا۔ وہ تو صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والا کسی قسم کا خوف دل میں نہیں لاتا۔ وہ ایک درخت کے نیچے اپنی چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ رات کی تاریکی میں جانوروں اور پرندوں کے شور نے تلاطم برپا کیا ہوا تھا، مگر باواجی گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت جنگلی حیات نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی اور شور قدرے کم ہو گیا تھا۔ باواجی نے حسب معمول ترتوش کی حاضری لگانی شروع کی اور چند ہی ثانیے بعد ماحول میں عجیب و غریب تبدیلی رونما ہوئی۔ جنگلی جانوروں نے چیخ پکار شروع کر دی اور خاص طور پر جنگلی بلیاں اور کتے دردناک آوازوں سے چیخنے چلانے لگے تھے۔ پرندوں کے شور نے ان کی منحوس آواز اوہے میں شدت پیدا کر دی۔ ترتوش نے حاضر ہوتے ہی باواجی کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، باواجی، آج آپ کو جنگل کے اندر محفل سجانے کا خوب طریقہ سوجھا ہے۔ بیچارے سوئے ہوئے جانوروں کو جاگنا پڑ گیا ہے۔ اب جب تک میں یہاں موجود رہوں گا وہ یوں ہی روتے چلاتے رہیں گے۔ باواجی عجیب لہجے میں بولے، ترتوش، یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ اس کی ذات اعلیٰ نے جانوروں اور پرندوں کو تمہارے وجود کی پہچان کا علم دیا ہوا ہے۔ ایک اس دور کا انسان ہے جو تم جیسی اعلیٰ مخلوق کا وجود تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو نظر نہیں آ سکتے، ترتوش نے کہا۔ ویسے بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب تک خود کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتا اس کا وجود تسلیم نہیں کرتا۔ نہیں ترتوش، یہ بات نہیں۔ انسان بڑا ہیلا باز ہے۔ وہ آنکھوں دیکھی بات پر یقین کر لیتا ہے مگر بعد میں اس پر شک کرتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے اس کی حقیقت کو جھٹلاتا رہتا ہے۔ انسان کو سمجھنا بہت مشکل۔ تم یوں سمجھو فرشتوں، جنات اور کائنات کی ہر جاندار شے کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ انسان کے اندر ہے۔ اس کی جبلت کا دائرہ کائنات سے ماورا ہے۔ تمہاری مخلوق انسان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ جنات بہت سی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں پھر بھی وہ انسان کی نہیں معراج کو چھو سکتے۔ ترتوش باواجی کی باتیں انہماک کے ساتھ سن رہا تھا۔ وہ بولا، اس آن اسے انسانوں کی بڑھائی ناگوار گزری۔ وہ بولا، نہال شاہ، ہم انسان کی افضلیت کو تسلیم کرتے ہیں مگر یہ کہنا کہ جنات انسانوں سے کمتر ہیں درست نہیں۔ جنات بھی اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح کے انسان۔ ہمارے ہاں بھی معاشرتی زندگی مختلف نظاموں کے تحت چلتی ہے۔ ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں
गोया हमारा तर्ज जिंदगी और फ़क्र अमल इंसानों से मुख्तलिफ नहीं। हमारी मुआशरती और साइंसी तरक्की अगरचे इंसानों को नज़र नहीं आती, मगर हमारी दुनिया में ये सब मौजूद है। अब जिन्नात और इंसान का तकाबली जायज़ा लें तो जिन्नात इंसान से कमतर नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनमें इंसानों से ज़्यादा खूबियाँ हैं तो गलत नहीं होगा। बावाजी तरतूश का इस्तेदलाल सुनकर बोले, तुम ठीक कहते हो, मगर ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि इंसान जिन्नात से अफजल है, और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। अलबत्ता ये बात भी तयशुदा है कि इंसान जिन्नात से अफजल होने के बावजूद जिस्मानी तौर पर इससे कमजोर है, इसलिए कि इंसान अपनी इल्मी खूबियों से पहचाना जाता है। वो अपनी इल्मी ताकत की बदौलत जिन्नात को अपना मोती बना सकता है। इंसान को जो इल्म और ज़हन अता किया गया है, जिन्नात इससे महरूम। और बावाजी ने इंसान और जिन्नात का तफावत वाज़े करते हुए बताया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों, जिन्नात और इंसानों में बुनियादी तखसीस कायम कर दी है। फरिश्ते नूर की पैदावार हैं, वो अल्लाह ताला की हम्दो सना के लिए पैदा किए गए हैं, इनमें शर की कोई गुंजाइश नहीं। जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, चुनांचे वो नेक और साले होने के बावजूद बदी का इर्तिकाब करते हैं, लेकिन इंसान बज़ाहिर जितना भी बुरा नजर आए, बहरहाल इसमें अच्छाई का तनासुब जिन्नात की निस्बत बहुत ज्यादा है। इंसानों और जिन्नात की अरवा में ये फर्क खालिक कायनात ने कायम किया है, इसलिए मैं और तुम इस खलीज को पाट सकने से रहे। तरतूश को बावाजी की ये बातें नागवार गुजर रही थीं, लिहाजा उन्होंने मौजू बदल दिया और तिब के बारे में बातें शुरू कर दी। रात आधी से ज्यादा बैठ गई थी। बावाजी और तरतूश की ये नशिस्त मामूल से खासी तवील हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे दोनों दोस्त दिन चढ़े तक यूं ही तिब की गुत्थियां सुलझाते रहेंगे। सहरी से कुछ देर पहले बावाजी ने तहज्जुद की नमाज अदा की और कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेट गए। उन्होंने तरतूश को इसकी दुनिया में वापस जाने की इजाजत दी तो वो अकीदत व एहतराम के साथ कहने लगा, निहाल शाह, मैं चाहता हूँ आज मेरे शागिर्द फजर की नमाज आपकी इमामत में अदा करें। इस वक्त तक आप कुछ देर के लिए आराम कर लें, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। बावाजी ने खुश दिली के साथ इजाजत दे दी और तरतूश फजर होने तक बावाजी का पहरा देता रहा। फिर इसने बावाजी को जगाया और अपने हाथों से उन्हें वजू कराया। इसी असना में तरतूश सीन के शागिर्द जिन्नात भी हाजिर हो गए। जंगल की तारीकी में सफेद लबादों और इंसानी रूप में ढले हुए जवां कामत जिन्नात की एक कतार ने बावाजी की इमामत में नमाज अदा की। नमाज के बाद बावाजी ने तिलावत कुरान पाक की और उन्हें चंद फिक़ही मसाइल बताए। अब तरतूश के वापस जाने का वक्त होने वाला था। अपनी दुनिया से जुदा हुए बहुत वक्त गुजर गया था। जाने से पहले मुआ इसे कुछ याद आ गया और उसने कहा, निहाल शाह, मैं आपको ये बताना भूल ही गया हूं कि बंतो चमार उसी जंगल में मौत की हिचकियां ले रहा है। जब आप सो रहे थे मैंने सारे जंगल का गश्त किया था। इस दौरान मेरी नजर इस पड़ गई। वो गहरे खड्ड में पड़ा है और उसकी टांग की हड्डियां टूट गई है। मैंने अपने एक शागिर्द को उसकी हिफाजत पर छोड़ दिया था। अब बताएं इसका क्या करना है? बावाजी ने झट से कहा, इसे निकाल कर उधर ले आओ। तरतूश ने अपने चहीते मस्तान जिनको इशारा किया, तुम जाओ और इसे उठा लाओ। फिर उसने बावाजी से कहा, मैं हैरान हूं वो जंगल में क्या लेने आया था। बावाजी ने इसे बंतो चमार, इसकी बीवी और बिलोनित सिंह का सारा किस्सा सुना दिया। ये सुनकर तरतूश भड़क उठा और गरज कर बोला, निहाल शाह, मैं बिलोनित सिंह का गला उसकी करपान से काट दूंगा। इस बदकार की ये जुर्रत कि इसने आपको धक्का देकर गिराया और बेइज्जती की मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं तरतूश, तुम ये नहीं करोगे। मैंने जब उसे मुआफ कर दिया है तो तुम्हें इससे बदला लेने की जरूरत नहीं। इस दौरान मस्तान बंतो चमार को उठाकर ले आए। बावाजी ने अपने थैले में से एक चिराग निकाला और जलाकर उसकी रोशनी में बंतो का जायजा लेने लगे। वो बुरी तरह घायल हुआ था और उसकी दाएं टांग जगह जगह से टूट चुकी थी। इसके बावजूद उसकी नब्ज चल रही थी।
बाबूजी के पास इस वक्त कोई दवाई नहीं थी। उन्होंने तरतूश को चंद अद्वियात लाने के लिए कहा जो उसने कुछ ही देर बाद हाजिर कर दे। बाबाजी ने बंतो के पूरे जिस्म पर उन अद्वियात की मालिश की और उसकी टूटी हुई टांग पर चंद जड़ी बूटियों का लेप करने के बाद ऊपर कपड़ा बांध दिया। फिर एक प्याला पानी में दवाई घोलकर इसके मुंह में कतरा कतरा टपकाने लगे। कोई 10 मिनट बाद इसने सस्कारी भरी और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा। बाबाजी ने इसे मुखातिब किया तो बंतो चमार बाबाजी की आवाज सुनते ही हड़बड़ा उठा और उसकी बेहोशी काफूर हो गई। वो हैरत ज़दा रह गया। पहले इसे गुमान हुआ कि वो ख्वाब में बाबाजी से मिल रहा है, मगर बाबाजी ने इसे अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। बाबाजी ने इसे बताया कि वो उन्हें किस हालत में जंगल से मिला है। अलबत्ता उन्होंने इसे ये बताना मुनासिब ना समझा कि उसे जिन्नात ने जख्मी हालत में दरियाफ्त किया था और वही इसे उठा कर लाए। बंतो चमार बाबाजी की इनायत जानकर ज़ारो कतार रोने लगा और हिचकियां भरते हुए बोला, सरकार, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी कड़ी सजा भी भुगती है। आप मुझे क्षमा कर दें। इसने बाबाजी के पांव पकड़ लिए और अपना सर उनके कदमों में रगड़ने लगा। बंतो की इस हरकत पर मस्तान की हंसी छूट गई। हंसने की इस अजीब व गरीब आवाज पर बंतो ने एकदम रोना बंद कर दिया और चौंक कर सर उठाकर गिरदोपेश में देखने लगा। वो हैरान था कि बाबाजी तो इस तरह कभी ना हंसे होंगे, क्योंकि ये आवाज थी ही गैर इंसानी। बाबाजी को मस्तान का यूं हंसना अच्छा ना लगा और उन्होंने इसे झड़क दिया, दफ हो जाओ और तुम भी जाओ। उन्होंने मस्तान और आस के साथियों से कहा तो बंतो चमार एक बार फिर उनके कदमों में गिर गया और रोने लगा। बाबाजी सरकार, मुझे कदमों से जुदा ना करें। वो समझा था कि बाबाजी ने इसे झिड़का है। बाबाजी को उसकी गलत फहमी अंदाजा हो गया था। लिहाजा नोहे ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, बंतो अब उठो और मेरी बात गौर से सुनो। बंतो चमार मैकेनिकी अंदाज में यूं सीधा होकर बैठ गया जैसे इसके बदन में किसी किस्म की टूट फूट हुई ही नहीं थी। वो एक सेहतमंद इंसान की तरह हरकत कर रहा था। ये बाबाजी की दवाइयों का हैरत अंगेज असर था कि उसके सारे जख्म मुंदमिल हो गए थे और जिस्म में तवानाई भी रवां हो गई थी। अलबत्ता उसकी टांग की टूटी हुई हड्डियों के जोड़ अभी तक जुदा थे, मगर इसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बाबाजी ने बंतो चमार को उसकी बीवी और बिलोनित सिंह के ताल्लुकात से आगाह किया और समझाया, देखो बंतो, जो बंदा अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो बेगैरत कहलाता है। जरूरी नहीं कि आदमी जिस्मानी तौर पर ताकतवर ही हो तो अपनी गैरत का इजहार कर सके। गैरत तो चींटी जितनी भी हो तो हाथी जैसे पहाड़ को मार देती है। मैं ये नहीं कहता कि तुम बिलोनित सिंह को जान से मार दो, अगरचे वो इसी सलूक का मुस्तहिक है, मगर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम रोशना को छोड़ दो। वो कभी तुम्हारी हुई है ना हो सकेगी। वो एक डाइन है और जब भी इसे मौका मिला तुम्हें खा जाएगी। अगर तो जिंदा रहना चाहता है तो गैरत के साथ जी और मरना है तो जीदारों की तरह मर। बंतो चमार बाबाजी की बातें सुनकर शर्मिंदगी से जमीन में गुड़ गया। वो बोला, बाबाजी सरकार, मैं जानता हूं कि रोशना बिलोनित सिंह की रखेल है, मगर मैं क्या कर सकता था। वो गांव के वाली वारिस हैं, हम उनका ही दिया खाते हैं और हमारी जानों पर उन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल है। ये मेरी बदकिस्मती है कि सारे गांव में रोशना से बढ़कर कोई और खूबसूरत नारी नहीं। अगरचे वो मेरी पत्नी है, मगर सिर्फ नाम की हद तक। बिलोनित सिंह से पहले इसका बाप कोहराम सिंह रोशना पर नजर रखे हुए था, मगर बेटे को जब रोशना नजर आई तो उसने अपने बाप से बात की। बिलोनित अपने बाप की इकलौती और लाडली औलाद है, इसलिए कोहराम सिंह इसके रास्ते से हट गया और उसने रोशना के सारे हुकूक बेटे के नाम कर दिए। अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं क्या करूं? आप कहते हैं मैं गैरत के साथ जिंदा रहूं, मगर ये कैसे मुमकिन है? मुझे गैरत के साथ कौन जीने देगा? ये कहकर बंतो रोने लगा और बोला, बाबा जी, रोशना मुझे अपनी कुर्बत के झांसे देती है। मैं जानता हूं कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकती,
इसे कोई बीमारी है, मगर मुझे औलाद का बड़ा जुनून है, इसीलिए तो कभी बूढ़ के कुएं से पानी लाने पर राजी हो जाता हूँ और कभी शेरनी के दूध की खातिर जान खतरे में डाल लेता हूँ। अपने पहले भी मुझे बताया था कि रोशना वफा की देवी नहीं, मगर मैं इसकी बातों में आकर बहल गया था और शेरनी का दूध लेने इस जंगल में आ गया था। इसके बाद बंतू ने बाबा जी को बताया कि किस तरह जंगल में दाखिल होते ही वो खौफजदा हो गया और जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर भाग उठा, मगर झाड़ियों में उलझ कर गिरने और खौफ की शिद्दत से हवास बाख्ता होकर वो एक गड्ढे में गिर गया था। बाबा जी न जाने बंतो चमार में इस कदर क्यों दिलचस्पी ले रहे थे। उन्हें इस मासूम और कमजोर इंसान से एक खास अनस हो गया था, तभी वो इस पर मेहरबान हो रहे थे। उन्होंने इसकी बातें बड़े गौर से सुने और कहा, बंतो, मैं तेरा दर्द जानता हूं, मगर तेरे इस दर्द की दवा भी मैं ही बनूंगा। आज से मैं तेरा साया बनकर रहूंगा। बस तो अपने अंदर हौसला पैदा कर और अपनी बस्ती में वापस चला जा, तेरे दुश्मन तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा जी की बातों ने बंतो को हौसला दिया। उसके अंदर यकीन की चिंगारी सुलगने लगी और वो खुद पर एतमाद करने के काबिल हो गया। इससे ये यकीन हो गया था कि बाबा जी फालशाह जिस तरह आड़े वक्त में इसकी मदद को पहुंच रहे हैं, इस तरह मुस्तकबिल में पेश आने वाली मुश्किलात में भी इसकी मदद करेंगे। बाबा जी की अद्वियात ने बंतो के जख्म तो भर दिए थे, मगर अभी वो अपनी टांगों के सहारे चलने से माजूर था, लिहाजा बाबा जी ने इसे अपने साथ निमोलिया ले जाने का फैसला किया। अगली सुबह वो बंतो को लेकर जंगल से किसी तरह बाहर निकले। इस बारे में ये रवायत हम तक पहुंची है कि उन्होंने अपनी पुरस्रार ताकतें इस्तेमाल करने के बजाय बंतो को अपने कांधों पर बिठा लिया था और पैदल ही घने जंगल उबूर करने लगे। बंतो खुद हैरान था कि एक नहीफ शख्स किस कदर आराम के साथ एक शख्स को उठाए पैदल चल रहा है। जंगल में जानवरों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी और दरिंदे भागते दौड़ते फिर रहे थे। बंतो उन्हें देखकर खौफ से मरा जा रहा था, मगर बाबा जी की बेनियाजी देखकर वो हैरान रह गया कि उन्हें जानवरों का कोई खौफ नहीं था। इसके लिए एक हैरान कुन बात यह भी थी कि किसी भी दरिंदे ने उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। अलबत्ता जब वो किसी वहशी जानवर के पास से गुजर रहे होते तो वो अजीब अंदाज में फिजा में कुछ तलाश करने लगता। यूं लगता था जैसे वो फिजा में किसी नामानूस बो को महसूस कर रहा हो। बंतो को इसी तरह के हैरान कुन तजुर्बात से पाला पड़ता रहा और उन्होंने कोई 1 घंटे की मसाफत के बाद जंगल उबूर कर लिया। आगे खिले सरसब्ज शादाब लहलहाते खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। पहाड़ के दामन में फैले हुए इन खेतों में हिरन, अचनकरे, जंगली घोड़े और खरगोश घूम फिर रहे थे। बाबा जी ने एक घोड़े को काबू किया और बंतो को इस पर बिठाकर खुद भी इस पर सवार हो गए और फिर इसी घोड़े पर सफर करते हुए निमोलिया आ गए। बंतो इस वक्त तक निमोलिया में रहा जब तक वो अपनी टांगों पर चलने फिरने हता के दौड़ने के काबिल ना हो गया। वो बाबा जी की सेवा में लगा रहता था। बाबा जी ने भी इस पर खुसूसी तवज्जो दी और उनके हसन सलूक से मुतासिर होकर एक रोज इसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाबा जी ने इसका इस्लामी नाम नूरदीन रख दिया। 1 महीने बाद नूरदीन ने बिलादात जाने के लिए रख्त सफर बंधा और बाबा जी से इजाजत तलब की। उन्होंने इसे नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुखसत होने की इजाजत दी और समझा, नूरदीन, अल्लाह ने तुझे अपने नूर से फैज याब किया है तो इस नाम की लाज भी रखना। अपनी बस्ती में इस्लाम फैलाने की कोशिश करना। तकदीर ने तेरे रास्ते बड़े कुशादा कर दिए हैं, मगर एक बात याद रखना, गरीबों और कमजोरों पर कभी जुल्म न करना और नाइंसाफी से अपने आप को बचाए रखना। नूरदीन ने ममनूनियत के साथ कहा, बाबा जी सरकार, मैं आपकी बातों पर अमल करूंगा। बंतो चमार अब नूरदीन के रूप में बिलादात की तरफ रवाना हो रहा था। वो अंदर बाहर से मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। बाबा जी ने इसे रुखसत करते वक्त शेर की हड्डी पर अमल करके दिया और ताकीद की और कहा, नूरदीन इसे काले धागे के साथ बांधकर अपने गिले में डाल कर रखे, फिर तावीज अपने गिले से कभी ना उतारना।
शेर की हड्डी तेरे अंदर शेरों जैसी ताकत और खूबियां पैदा कर देगी। याद रखिए, राज भी किसी को ना बताना कि तुम्हारी ताकत बढ़ाने में ये तावीज किया कमालात दिखा रहा है। नूरदीन ने तावीज लेकर संभाल लिया और इसी रोज बिलादाद के लिए रवाना हो गया। जी तो लिसनर्स, आपको ये नावल कैसा लग रहा है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर अगली किस्त में अब से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।